A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. MCQs of Computer Science. Lecture number 8. Question number 1. A session symmetric key between two parties is used. दो पार्टीज के दरमियान, दो कंप्यूटर्स के दरमियान जो एक सेशन सिमेट्रिक की होती है वो कौन सी फॉर्मेट में होती है? A twice, B only once, C multiple time and D depend on situation. So इसका सही जवाब है ऑप्शन B only once. Symmetric key between two parties is established only once. Question number 2. Encryption and decryption provide secrecy or confidentiality but not. Encryption और decryption. Encryption का मतलब है डेटा को प्रोटेक्ट करना, साइफर करना. Decryption का मतलब है डिसाइफर करना. सिर्फ secrecy को और confidentiality का मतलब है डेटा पोशीदा रखना, but not a authentication. Authentication का मतलब है कि वो whether user is valid or not. Keys. Integrity का मतलब क्या है? Accuracy and completeness and D-frames. So इसका सही जवाब है ऑप्शन C integrity. Encryption and decryption provide secrecy or confidentiality but not integrity. Integrity means accuracy and completeness. Question number 3. MAC stand for. MAC किसका एब्रिवेट है? A message authentication connection, B message authentication connection, C message authentication correction and D message authentication correction. So इसका सही जवाब है message authentication correction, option D. Question number 4. When data arrives at receiver exactly as they were sent scored. जब डेटा रिसीवर पर आ पहुंचे इस तरह जिस तरह सेंडर ने इसको भेजा हो, इसे क्या कहा जाता है? मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी A, B मैसेज इंटीग्रिटी, C मैसेज स्प्लैशिंग एंड D मैसेज सेंडिंग. इसका सही जवाब है ऑप्शन B मैसेज इंटीग्रिटी. मैसेज इंटीग्रिटी मीन्स द accuracy and completeness. So when data is sent from the sender to receiver is it first sent by the sender, it is called message integrity. Message integrity का क्या मतलब है कि जिस तरह सेंडर ने डेटा भेजा हो उसी तरह वो रिसीवर को उसूल हो सके. Question number 5. Message digest needs to be. So message digest किस तरह होना चाहिए? ठीक है, मैसेज डाइजेस्ट क्या है? मैसेज डाइजेस्ट जो है ये एक मैसेज होता है लेकिन ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और एक एल्गोरिथम होता है जिसे CHF कहा जाता है, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन. ये क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन इस डेटा को कन्वर्ट करता है बिट्स ऑफ स्ट्रीम में, जिसको कोई और नहीं रीड कर सकता मां सिवाय रिसीवर के. इस converted form of bit stream is called message digest. So A public, B private, C secret and D non. So इसका सही जवाब है ऑप्शन C secret. मैसेज डाइजेस्ट जो है ये सीक्रेट होना चाहिए ताकि दूसरे जो यूजर है इसको रीड ना कर सके, इसको ब्रोक ना कर सके. क्वेश्चन नंबर 7. Well-known port used for encapsulation by server is. सर्वर जो encapsulation के लिए जो पोर्ट इस्तेमाल करता है उसे कहा जाता है. So what is encapsulation? Encapsulation means binding of data with methods that operate on that data. डेटा और मेथड का एक दूसरे के साथ बांधना encapsulation कहलाता है. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो ये कौन सी पोर्ट इस्तेमाल करती है? पोर्ट 55, B पोर्ट 25, C पोर्ट 53 एंड D पोर्ट 63. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन C
port 53. Question number 8. FQDM जो है स्टैंड फॉर किसका एब्रीवेशन है? Build Quality Domain Name, False Quality Domain Name, Fully Qualified Domain Name and Post Qualified Domain Name. So इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, Fully Qualified Domain Name. FQDN is also called Absolute Domain Name. इसको Absolute Domain Name भी कहा जाता है. It specify exactly its location and tree hierarchy of DNS Domain Name System. ये जो है डोमेन नेम सिस्टम में ये अपने आप को अपनी लोकेशन को स्पेसिफाई करता है. क्वेश्चन नंबर 6. DNS स्टैंड फॉर, DNS किसका एब्रीविएशन है? डोमेन नेम सिस्टम के, बी डिजिटल नेम सिस्टम के, सी डिस्क्रीट नंबर सिस्टम के एंड डी डेसिमल नंबर सिस्टम के. सो DNS जो है ये किसके लिए एब्रीविएट है? डोमेन नेम सिस्टम के. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. Question number 9. Which of the following architecture uses SysMo CD access method? SysMo stand for Carrier Sense Multiple Access / CD means collision detection. So कौन सी methods जो है SysMo CD यूज करते हैं? ArcNet architecture network, B Ethernet, C both A and B and D token passing. So इसका सही जवाब है Ethernet network. Ethernet network पर जितनी भी सेंडर होते हैं वो डेटा भेजने से पहले क्या करते हैं? मीडियम को चेक करते हैं, SysMo CD करते हैं कि आया कोई और है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, तो फिर वो डेटा नहीं भेजता अगर, क्योंकि फिर कोलिजन होती है. ठीक है. सो इसका सही जवाब है Ethernet. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following is considered broad communication channel? इसमें से कौन सा broad communication channel कहलाता है? Coaxial channel, fiber optic cable, microwaves and all of the above. So ये जितने भी चैनल हैं ये ब्रॉडबैंड है. ठीक है. ब्रॉडबैंड क्या है? Transmission of wide bandwidth data over high speeds of internet connection by using FDDI, DSL, satellite communication, coaxial cable, etc. यानी वो ट्रांसमिशन जो हाई बैंडविड्थ डेटा रेट जो हाई बैंडविड्थ डेटा रखता हो और उसे हाई स्पीड पर इंटरनेट कनेक्शन के जरिए मुंतकिल कर सकता हो. ठीक है. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 11. अ प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग अ टाइम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मस्ट टेक प्लेस. प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जो ये हुक्मरानी करता है कि दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह बनती है. बिटवीन पेयर्स, बिटवीन इंटरफेस, बिटवीन मॉडेम, बिटवीन डॉक्यूमेंट्स. इसका सही जवाब है बिटवीन पेयर्स कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जो रूल्स स्पेसिफाई है उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 12. हाउ मच OSI लेयर और covered in X.25 स्टैंडर्ड. X.25 स्टैंडर्ड में OSI लेयर के कितनी लेयर्स कवर्ड होते हैं? सो X.25 क्या है? X.25 is a standard protocol suite for packet switch data communication and wide area network. X.25 जो है ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट है पैकेट स्विच नेटवर्क के लिए. ठीक है. और ये वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होता है. इसके 3 लेयर होते हैं, फिजिकल, डेटा लिंक एंड पैकेट लेयर. सो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 3, ऑप्शन C 7, ऑप्शन C 6. इसका सही जवाब है ऑप्शन B 3 लेयर्स. Question number 13. X.25 is example of ... network. X.25 किस नेटवर्क की मिसाल है? A सर्किट स्विच नेटवर्क की, B पैकेट स्विच नेटवर्क की, both A and B and none. तो हमारे साथ स्विचिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं. सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है. ठीक है. और दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन X.25 जो है ये पैकेट स्विच नेटवर्क की एक एग्जांपल है. इसका सही जवाब है ऑप्शन B पैकेट स्विच नेटवर्क. Question number 14. Uniform Resource Locator URL is a standard for specifying any kind of information on the
URL जो होता है, जो एक स्टैंडर्ड होता है किसके लिए, ख़ास किस्म इंफॉर्मेशन को लगाना किस पर, ऑन सर्वर पर, BIP पर, C वेब पेज पर, एंड D इंटरनेट पर। तो इसका सही जवाब है इंटरनेट। URL is used in the internet for specifying any kind of information. Question number 15. Which of the following is an advantage to using fiber optic data transmission? इसमें से कौन से एडवांटेजेस है ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करने के लिए? ऑप्टिकल फाइबर के कौन से एडवांटेज हैं नीचे में से? ठीक है, ए रेजिस्टेंस टू डेटा थेफ्ट, डेटा चुराने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है, फास्ट डेटा कम्युनिकेशन रेट, ये भी ठीक है, लो नॉइस लेवल, ये भी ठीक है, डी ऑल ऑफ द अबव। सो डेटा एवरीडे के एडवांटेजेस क्या है? एक तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है डेटा टेप से, डेटा कम्युनिकेशन रेट बहुत हाई होती है, और इसमें नॉइस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी नहीं होता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडिया? इनमें से कौन सी ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है? ए टेलीफोन लाइन, ये ट्रांसमिशन मीडिया है। बी कोएक्सियल केबल, ये भी ट्रांसमिशन मीडिया है, गाइडेड मीडिया है। सी मॉडेम, ये नहीं है। और डी माइक्रोवेव, ये भी ट्रांसमिशन मीडिया है लेकिन वायरलेस है। सो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी मॉडेम, विच इज़ अ डिवाइस। Question number 17. Which of the following transmission system provide the highest data rate to the individual devices? इसमें से कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम हाईएस्ट डेटा रेट को इंडिविजुअल डिवाइस को दे देता है? ठीक है, कंप्यूटर बस, टेलीफोन लाइंस, वॉइस एंड मोड लीज लाइन। तो इसमें से फास्टेस्ट जो है, हाईएस्ट डेटा रेट जो है, ये कौन देता है? कंप्यूटर बस देता है। ए कंप्यूटर बस। क्वेश्चन नंबर 18. ए बैंड इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू, एक बैंड किसके बराबर होता है? ए बाइट के, ए बिट के, मिलियंस बिट्स के, नॉन्स। बैंड्स क्या है? बैंड्स इज आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी बैंड, इज ए स्पेसिफिक frequency range and the radio frequency spectrum from very large frequency to very high frequency. ये इसको फ्रीक्वेंसी रेंज बैंड भी कहा जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी की खास रेंज होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है डी, नॉन ऑफ द एबव। इनमें से कोई भी नहीं है, बाइट भी नहीं है, बिट भी नहीं है, बिलियन बिट्स भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following layer decide physical path the data should take? इनमें से कौन सा लेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर, इसमें से कौन सा लेयर डिसाइड, फैसला करता है फिजिकल पाथ द डेटा शुड टेक, के कौन सा फिजिकल पाथ डेटा अपना सके? ए एप्लीकेशन, बी नेटवर्क, सी फिजिकल, डी नॉन। सो इसका सही जवाब है फिजिकल। फिजिकल पाथ जो है, फिजिकल लेयर जो है, ये एक फिजिकल पाथ होती है जिस पर डेटा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन. द लॉस इन सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड. सिग्नल की पावर में जो सिग्नल की पावर की कमजोरी या इसकी का खात्मा जब लाइट ऑप्टिकल फाइबर से गुजरती है, इसे क्या कहा जाता है? लॉस इन सिग्नल पावर क्या कहलाता है? ए अटेन्यूएशन, बी प्रोपिगेशन, सी स्कैटरिंग एंड डी इंटरप्शन. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अटेन्यूएशन. What does attenuation means? Attenuation means the weaken in the signal of the weaken in a signal when it transmit from one point to another. So this is the end of this lecture. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.